स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक से हैं अपने अपने घरों में और ऑनलाइन स्टडी कंटिन्यू किए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या बताया था? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन the plates of the capacitor or dielectric is placed in the external field. Now today we want to discuss with you to calculate the electrical capacitance of a capacitor when dielectric material is partially filled in between the plates. Now let us see here a parallel plate capacitor whose one plate is positively charged if it is connected with any source, and the second plate is negatively charged whose outer face is connected with earth, okay, because of induction phenomena. Suppose A be the area of each plate of the parallel plate capacitor and D is the separation between the plates. If the capacitance of capacitor, if air is filled between the plates, C0 is equal to epsilon 0 A upon D. This we have calculated in earlier lectures. Okay, ये हम जानते हैं। हाँ, the electric field in air between the plates क्या होगा? E0 is equal to Q upon epsilon 0A. कैसे है? क्योंकि E is equal to E0 is equal to sigma upon epsilon 0, and you know sigma is equal to Q upon A. What is sigma? Sigma is the surface charge density of this plate minus sigma is the surface charge density of this plate. So E0 is the electric field in air between the plates. Okay, that's all. If a dielectric of thickness T is introduced between the plates, then the electric field is reduced to E because of dielectric polarization. आपको पता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि whenever a dielectric material is placed in an external field, its electric dipole center of positive and negative charge of each and every molecule gets displaced. So each and every molecule behaves as an electric dipole, और उसका अलाइनमेंट इस तरीके से होता है कि पॉजिटिव इंड की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। तो देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज डेवलप्ड कॉल्ड एज पोलराइज्ड फील्ड EP, जस्ट अपोजेस the external field which is because of charge plus Q and minus Q in air between the plates. So the net or the reduced value of effective field in the dielectric material can be written as equal to E0 minus EP, and this field has got value E is equal to E0 minus EP, and this can be written as E0 upon K. That means Q upon epsilon 0 Ka. So this is the electric field in air, and this is the electric field in dielectric material. This has got importance in calculating the electrical capacitance if partially dielectric material is filled. So suppose if V is the potential difference between the plates, then what will happen?
V कैन बी रिटन एज इक्वल टू, ध्यान रहे यहां कि E0 माइनस D पार्ट में तो E0 फील्ड है, सॉरी D माइनस T0 पार्ट स्पेस में, D माइनस T स्पेस में कैपेसिटर के अंदर E0 फील्ड है, एयर में फील्ड है E0, और जो T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड है उसमें रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ फील्ड E है, दोनों की वैल्यू हमें पता है। और ध्यान रहे यहां पर ये लाइन नहीं बल्कि क्या है, प्लेट है, तो उसी प्लेट के एरिया के बराबर एरिया का ये सरफेस है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इसके अंदर रखा गया है, ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉडी ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सो दिस V कैन बी रिटन एज इक्वल टू E0 टाइम्स D माइनस T plus E times T, and this can be written as Q upon epsilon 0 A into D minus T plus Q upon epsilon 0 K A into T. If we solve this Q upon epsilon 0 A, we will find D minus T plus T upon K. So this is the potential difference between the plates of capacitor in presence of a dielectric slab of thickness T. Then, as you know, the electrical capacitance C can be calculated as equal to Q upon V. The charge Q is stored inside the capacitor. So, the electrical capacitance of the capacitor, the electrical capacitance C, which comes out to be C is equal to Q upon V, and this is equal to Q upon epsilon 0, sorry, Q upon epsilon 0 A D minus T plus T upon K. Okay, Q cancel out, so we have C is equal to how much? C comes out to be equal to C equal to epsilon 0 A upon D minus T, if we take T common, 1 minus 1 upon K. So this is the electrical capacitance of a capacitor when a dielectric slab of thickness T is introduced between the plates. Okay, if we compare these two results, what we will find? For each material K is greater than 1. So we have D minus T plus T upon K. This is less than D. So C is greater than C0. यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने से प्लेट के बीच में पार्शियली ही इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ इतनी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई, तो इतने रीजन का जो पोटेंशियल है वो कम हुआ। सो द नेट पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स क्या हुआ? कम हो गया। और आपको पता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब यहाँ कुछ हम स्पेशल केस का जिक्र करना चाहते हैं। स्पेशल सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं। स्पेशल केस, ओके, व्हाट वुड बी, क्या हो सकती हैं स्पेशल केसेस? तो पहली केस तो यह है, इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फुल्ली प्लेस्ड, introduced, then what will happen? T comes out to be D, so C M comes out to be, or CK comes out to be epsilon 0 A upon D minus D plus D upon K. This cancel out, so we have C M is equal to, मीडियम के लिए हम लिख रहे हैं epsilon 0 K A upon D. So this is the capacitance of electrical capacitor when rather than T thickness का पूरा अगर हम ले लें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो उसकी कैपेसिटी K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, यानी Cm इज इक्वल टू K टाइम्स C0। ये बात समझ में आती है? पिछले केस में हम लोगों ने देखा था, पिछले लेक्चर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। यहाँ एक बात और आती है। सेकंड केस ये है, इफ अ कंडक्टर इज
conductor is introduced between the plates of thickness T, then what will happen? For conductor K comes out to be infinity, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T, क्योंकि ये जो फैक्टर है प्लस D अपॉन T अपॉन K, T अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा कंडक्टर के इसमें, इसको भी देखने से लग रहा, इसको हम कंडक्टर का मटेरियल रख दें, कंडक्टर रख दें, तब भी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और एक तीसरी केस ऐसी बन सकती है, फुल्ली कैपेसिटर रख दें। ओके, इफ अ कंडक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड between the plate fully, then what will happen? T is equal to D, but here K is equal to infinity, so this comes out to be C is equal to epsilon 0 Ka rather than epsilon 0 A D minus D, that is equal to infinity। 0 हो जाएगा नीचे, तो इन्फिनिटी आ गया, यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि फील्ड इसके अंदर 0 तो पोटेंशियल 0। और फील्ड 0 क्यों हो रही है? क्योंकि जो पोलराइज्ड फील्ड है, पोलराइज्ड फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ E0। जितना एयर में फील्ड थी उसका अपोजिट पोलराइज हो गया, क्योंकि अब यहाँ चार्ज अलग अलग ना होकर के क्या होंगे, यहाँ माइनस क्यू चार्ज होंगे, यहाँ प्लस क्यू चार्ज होंगे। तो नेट इफेक्ट इसका जब पूरे में कंडक्टर को प्लेस कर देंगे तो नेट इफेक्ट फील्ड 0 यानी पोटेंशियल 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो आपकी कैपेसिटेंस क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई, यानी मैक्सिमम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज उस पर स्टोर किया जा सकते हैं। एक केस का और मैं जिक्र करना चाहता हूं, और इसी क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं, विच इज यू कैन से केस 5th, इफ अ dielectric material K1, K2, K3 are placed between the plates of thickness, suppose T1, T2 and T3, okay, then C जो लिखेंगे, C dash लिखेंगे, this comes out to be epsilon 0 A upon D minus T1 plus T2 plus T3, okay, plus T1 upon K1 plus T2 upon K2 plus T3 upon K3। ध्यान रहे, इंडिविजुअल एक एक का ऐसे हम रखेंगे तो केवल T और T अपॉन K नहीं रखेंगे, D माइनस T की जगह T1 प्लस T2 प्लस T3, क्योंकि तीनों को मिला के है, और यहां पर रखेंगे T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3। ओके, और अगर इसमें हमें मान लें कि सारे मटेरियल्स, इतने मटेरियल्स रखे गए कि कैपेसिटर की प्लेट्स क्या हो गई, दोनों के बीच में एयर जो है हट गया, सारा का सारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब ही आ गया, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस एंड सो ऑन Tn, ये सभी मिलके क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो अब यही C डैश क्या होगा? एप्सिलॉन 0 A माइनस अपॉन D माइनस D प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन Kn। तो अब ये जो हमारा C डैश आएगा, ये एप्सिलॉन 0 A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस एंड सो ऑन Tn अपॉन K। तो ये कई तरह से हमने जाना, अगर हम T थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इतना आएगा, ओके। अगर कोई नहीं रखे हैं तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इतना आएगा। हमने पहले निकाला था C इज इक्वल टू कितना था? C इज इक्वल टू C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ओके। कंपेयर किया तो बढ़ गई, और अगर हमने कहा कि इसको फुल्ली कर दें तो K टाइम से बढ़ गई। हमने कहा कि अगर इसमें पार्शियली अलग अलग थिकनेस के रख दिया तो एक्सप्रेशन ये आया। और हमने ये भी कहा कि फुल्ली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स प्लेस्ड हैं, लेकिन अलग अलग थिकनेस, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भर गए हैं उसके अंदर के गैप, तो ये आया हमारा एक्सप्रेशन।
तो इन अल्टीमेटली हमने आपको आज बताया कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के चाहे बहुत थोड़े रीजन में प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या कंडक्टिंग मटेरियल रख दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। और अगर पूरा रख दिया तो उतने टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने आज कैपेसिटेंस पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर का निकालना बताया और डिफरेंट उसमें स्पेशल केसेस का जिक्र किया। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय।